सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑफिस मेमोरेंडम को लेके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो पुराना, मगर ये न्यूज़ में अचानक से एक और बार आया। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी था इसको लेके, तो देखते हैं क्या है। ये बेसिकली स्पेशल कैजुअल लीव को लेकर है। The Government of India has introduced a progressive policy to encourage organ donation among its employees by granting up to 42 days special casual leave. 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव्स देने की बात करी है सरकार ने। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑर्गन डोनेशन में पार्टिसिपेट करता है या अपना डोनेट करता है। ये ऑफिस मेमोरेंडम आया है 28 अप्रैल 2023 में, मगर फिर से ये न्यूज़ में चर्चा में रहा। The policy applicable to all types of living donors under the Transplantation of Human Organs Act 1994। ये जरूरी है, Transplantation of Human Organs Act 1994 prioritizes treatment in the government of CHS empaneled hospitals and restricts the combination of SCL with other leave types. By setting this precedent, the government not only removes employment related barriers to organ donation but also paves the way for private organizations to adopt similar measures. अब इसके होने से ऑर्गन डोनेशन में और नए रास्ते खुलेंगे। बाकी ये ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम है आपके सामने। The department has been considering grant of special casual leave to organ donors in the light of several references queries received in consultation with Ministry of Health and Family Welfare. Organ removal for a donor is a major surgery which requires time for recovery, including both the hospitalization and post-hospitalization periods. Further keeping in view the noble activity to help another human being and to promote organ donation, the central government employees has now been it is decided that grant a maximum of 42 days SCL स्पेशल कैजुअल लीव। तो 42 दिन का यहाँ पे स्पेशल कैजुअल लीव देने की बात करी है to a central government servant for donating the organs to another human being as a special welfare measure in public interest. Notwithstanding the provision under the Appendix 3 of the CCS Leave Rules 1972 regarding grant of special casual leave not exceeding 30 days. Irrespective of type of surgery, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा इसमें सर्जरी किस टाइप की है। For removal of donor's organ, the duration of special casual leave will be maximum 42 days. 42 days max है। Leave shall be granted to all types of living donors. Living donors, provided donor had been duly approved for donation by the government registered medical practitioner. As per the Transplantation of Human Organs Act 1994, ऑफिशियल गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू आपको वेरीफाई करा जाएगा कि आप एलिजिबल है भी कि नहीं डोनेशन के लिए। स्पेशल कैजुअल लीव शैल नॉट बी combined with any other leave except in exceptional circumstances of complications of surgery on medical recommendation by the government registered medical practitioner। और ये बता दिए कि ये कंबाइन नहीं करी जाएगी और किसी लीव के साथ अनटिल अनलेस कोई स्पेशल दिक्कत ना आ जाए, वो भी कंसल्ट करा जाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर को उसके लिए। The measure applies notwithstanding the existing cap of 30 days of SCL under the CCS rules। तो यहाँ पे हमने देखा की पॉइंट्स क्या रहे। मैक्सिमम लीव ड्यूरेशन 42 डेज का कहा गया है यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी क्या है, लीव अप्लाइज टू लिविंग डोनर्स। यहाँ लिविंग डोनर की बात हो रही है, आगे हम आएंगे लिविंग डोनर कौन होता है, और जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के तहत होगा। यूसेज ऑफ लीव इज a typical taken into one stretch starting from the day of hospital admission। It can also begin up to 1 week before the surgery based on medical advice। Flexibility in splitting leave is permitted upon the recommendation of treating doctor।
बाकी इसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। ऑथराइज हॉस्पिटल कौन से होंगे? ट्रीटमेंट शुड प्रेफरेबली बी अंडरटेकन द गवर्नमेंट और CGHS empaneled hospital. If private hospital is used due to unavailability, a certified medical certificate must be produced. नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ लीव के बारे में क्लियर रखा हुआ है इस ऑफिस मेमोरेंडम में कि HCL फॉर ऑर्गन डोनेशन कैन नॉट जनरली बी कंबाइंड विद अदर टाइप्स ऑफ लीव एक्सेप्ट अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्विंग मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। अब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ईश्वर न करे हो जाए, अगर हो जाती हैं तो वहाँ पे वो कंसीडर करेंगे उसे। जैसे कि अब हम बात करें एक छोटा सा ऑर्गन डोनेशन के बारे में, तो सिंगल डोनर कैन डोनेट टू 8 लिविंग लाइफ सेविंग ऑर्गन्स एंड अदर टिश्यूज़। तो आप क्या कोई व्यक्ति क्या डोनेट कर सकता है? हार्ट, लंग्स, 2 lungs कैन सेव 2 lives, लिवर कैन बी स्लिप टू सेव 2 people, किडनी बोथ कैन बी डोनेटेड, पेंक्रियास का कुछ पार्ट और इंटेस्टाइन। Removing potential employment related disincentives, the government aims to encourage more individuals to participate in this altruistic act. बाकी ये कौन सी बॉडी देखती है ऑर्गन डोनेशन वगैरह, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो ये नोटो है। ठीक है, ये बॉडी है जो देखती है ऑर्गन डोनेशन वगैरह। भारत में आपका नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आपको जानना हो तो इसमें क्लिक करेंगे लिंक पे, वैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। द नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकेटेड एट 4th फ्लोर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी। हम बात करें आगे लिविंग डोनेशंस के बारे में। लिविंग डोनेशंस क्या माने जाते हैं? लिविंग डोनर्स असल में जो डोनेशन करने के बाद भी आप जीवित रह सके, ऐसे कौन से पार्ट्स हैं? 1 किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, पार्ट ऑफ लंग, अ पोर्शन ऑफ पेंक्रियास और इंटेस्टाइन्स। ये डोनेट करने के बाद भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। अच्छा इनिशिएटिव है, इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मोटिवेट भी कर रही है। जो अगर कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो डोनेट करना भी चाहते हैं मगर कई ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं कर रहे हो, लीव वगैरह की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है गवर्नमेंट और किसी की जान ही बचा रही है इससे। बाकी यहाँ पे आर्टिकल की फ़ोटो भी लगाई हुई है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ था। डिटेल में अगर आपको पढ़ना आर्टिकल और टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या आया था उसके लिए नीचे लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे। अ लिविंग डोनर कैन डोनेट अ किडनी as 1 kidney can maintain the body, a portion of pancreas as a half of pancreas is adequate for sustaining pancreatic functions, and a part of liver as the few segments that are donated will regenerate into after a period. तो लिविंग डोनर जो हम कहते हैं ना कैटेगरी लिविंग डोनर, उसमें मैंने आपको बता दिया है ये सर्टेन ऑर्गन्स डोनेशंस के लिए एलिजिबल होते हैं, उससे हम कहते हैं लिविंग डोनर। ठीक है, बाकी आपने जो सुना होगा कि लोग आंखें डोनेट कर देते हैं, अन्य बॉडी पार्ट्स डोनेट कर देते हैं, वो होती डेथ के बाद, वंस द पर्सन डिसीज्ड। ठीक है ना, बाकी लिविंग डोनर जो टर्म है उसमें आपके ये कैटेगरीज आती हैं जो मैंने ऊपर आपको मेंशन भी करी हुई हैं। फिलहाल आज के लिए ये रखते हैं। इस छोटी सी अपडेट के लिए आप आए जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में और कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। फिलहाल अगर आपको ये काम आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा और रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। थैंक यू।